Hello everyone, I am Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, in the previous lecture I have said that I am going to revise every day. What I am going to study, I will revise it next day in front of you. So in the day 1 and 2 at the April 1 and April 2, I revised process calculation. I start with a process calculation subject. I start with the introduction and the material balance with or without chemical reaction. I have covered these two topics, or you can say that these two chapters. Okay, so let's revise without wasting a time. So first of all, those who are new on my channel, please subscribe to my channel, because in this channel you will get the chemical engineering related subject videos or lectures, and also join the Telegram channel, because in Telegram channel I am going to share with you lots of notes, short notes, numericals, books, PDFs and many more things. So follow me there also and subscribe my YouTube channel. So without wasting time, let's get started with the revision of this first chapter, process calculation, and it start with the introduction. So in the introduction I have covered some of the important fundamental terms which is used to solve the numerical or used to solve the theoretical problem of the question related to the gate problem. Okay, so I'm not going to too deeper to the subject and not also cover all the concept of this chapter. Okay, so let's start with the Newtons. That Newton, what is Newton? Basically Newton is the SI unit of a force, and it is equal to the force that would give you a mass of 1 kg and acceleration of meter per second square, and it is equal to 10 to power 5 dynes. So basically Newton is the 1 Newton is equal to kg into meter per second square. You all everybody know this units, that is 1 Newton is equal to kg meter per second. Okay, okay, so it means 1 Newton is equal to kg meter per second square. This is the unit of Newton, and it is its metric unit of force is on the basis of weight measure is force due to gravity. Now come to the kilogram force. What is kilogram force? Kilogram force, basically it is a metric unit of force, and 1 kilogram force is equal to what is kg into acceleration due to gravity of the earth, and it means its unit becomes kg plus into meter per second square. Okay, so sometime so we know that the acceleration due to gravity is 9.8065 meter per second. So it means 1 kg force is equal to 9.80 kg meter per second square. So sometime 1 kg force is also called as kilopond. Okay, 1 kilopond is equal to, that's value is 9.806 kg meter per second square. ओके, तो किलोपॉन्ड और मैट्रिक न्यूटन्स का हमें पता चल गया. ये दो बेसिक थे जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे कि आपको एक बार गेट में क्वेश्चन बना था कि 1000 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज हाउ मच इक्वल टू, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बना था. ठीक है, तो अनदर थिंग इज मोल. सो बेसिकली व्हाट इज मोल? मोल इज द 1 मोल is the measure of any chemical quantity or substance. Basically it measure amount of chemical substance, or you can say that a mole is a quantity or anything that has same number of particles found in 12 gram of carbon 12. From this concept we also know here the Avogadro number, which is equal to 6.023 into 10 to power 23. Okay, so it means
we know that the mole is calculated with the formula mole is equal to mass in gram upon molecular weight, and we also know that 1 mole is equal to the 6.023 into 10 to power 23 atoms. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना। और ये फॉर्मूले 3 टाइप्स के होते हैं। ये मोल्स के ऊपर मेरे उस पर पड़ा है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम मोल्स जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, अब आते हैं प्रेशर टर्म पे। ठीक है, प्रेशर टर्म पे वी नो एवरीथिंग दैट फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है गेज प्रेशर, जैसे हमारे पास ये गेज प्रेशर हो गया, फिर हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया वैक्यूम प्रेशर। ओके, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम। ओके, तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव जो हो गया वो हमारा गेज प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक से कुछ अमाउंट नीचे हमारा माइनस गेज प्रेशर और वैक्यूम कह सकते हैं। यहाँ डेटम लाइन जो होगा एक्स एक्सिस पे हम उसको 0 एब्सोल्यूट प्रेशर कंसीडर करते हैं। और अगर हमें एब्सोल्यूट, और ये पॉजिटिव गेज हो गया, ये नेगेटिव गेज हो गया। ठीक है, अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम यानी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो होगा ये पी एटमॉस्फेरिक एंड पी गेज, ये जो होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ये जो ऑल टोटल हो गया। अगर हम बात करें इन शॉर्ट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर्मूला कि गेज प्रेशर निकालना है, पी गेज प्रेशर निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा? पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, पी एटमॉस्फेयर हो जाएगा। पी वैक्यूम अगर हमें निकालना है तो वो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट हो जाएगा। और पी एब्सोल्यूट मैंने यहाँ बताया दोनों का समीशन होता है, एटमॉस्फेरिक और गेज का। अगर गेज निकालना है तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, अगर हमें वैक्यूम निकालना है तो एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट। ओके, ये 3 चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। अब हम आ जाते हैं किस पे? यहीं पे एक छोटी जगह में आपको रिवाइज करना होगा। ऐसे आप नोटपैड ले लीजिए या पेपर ले लीजिए फोल्ड करके, तो आपको कन्वीनियंट रहेगा रिवाइज करने में। अब आ जाते हैं हम 3 कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मोलैरिटी, the second one is normality and third one is molality। ठीक है, तो ये जो यूज़ होते हैं, मोलैलिटी इज़ यूज टू डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये जो रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, किसके? कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोलैरिटी की। तो अगर मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया हमारा क्या? मोलैलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी में एक और टर्म आ जाता है हमारे पास जो कि होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले हम नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला देख लेते हैं। वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों ही मोलैरिटी और मोलैरिटी में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे हम मोलैरिटी में नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट, नहीं तो एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस से हमें ये कैलकुलेट करना होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इसके बेस न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
नंबर ऑफ वेट ऑफ नीचे होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये मोलालिटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको याद करना ज़रूरी है। दैट इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये चीज़ें मैंने ये 3 ले रखी है और यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि m जो है मोल्स पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर में और मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन। अगर हम डिफाइन करें तो कंसंट्रेशन बेसिकली हम किससे बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया C से, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। कंसंट्रेशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर एंड इट इज़ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम और टर्म फंडामेंटल है जल्दी से देख लेते हैं, जैसे कि वर्क। वी नो दैट द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड इट्स यूनिट SI यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर एंड जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल को भी हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसका मीन्स कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसा ही यूनिट में लिखे तो। पावर जो हो गया, पावर इज द टाइम रेट एट विच द वर्क डन और द एनर्जी इज ट्रांसफर, सो इट्स SI यूनिट इज वॉट एंड जूल पर सेकेंड, ओके। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस से पहले हम कुछ लॉज को पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडियल गैस लॉ डिफाइन करने में इजी हो। जैसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू C एट फिक्स टेम्परेचर फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेज, दैट इज P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V। और यहाँ जो P जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है और V जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, दैट इज कि if the process of pressure increases volume is decreases and Boyle's law holds true only if the number of moles n, जो कि number of moles n and the temperature both are constant, okay, ये तभी true करता है। और अगर हम statement की बात करें तो Boyle's law is used to predict the result of introducing to change in volume and the pressure only to find the initial state of fixed quantity ऑफ द गैसेस। ये हमारे पास कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। जैसे बॉयल्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें, कुछ टर्म्स दे रखे थे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और किसी में दे रखा था P2 V1 इज इक्वल टू P3 V3, तो इस टाइप से टर्म था। तो बॉयल्स लॉ के लिए जो एलिजिबल ऑप्शन था वो था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट थी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वेरी इन्वर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। एप्लीकेशन की बात करें तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज pressure increases, volume decreases and vice versa. Application इसका क्या है, at constant temperature pressure increases then volume is decreases. So एक ट्रू और फॉल्स भी था, जैसे एज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस दैट कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस, ओके। तो ये सारे थे। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। सेकेंड जो लॉ आ जाता है हमारे पास चार्ल्स लॉ दे रखा है, उसका स्टेटमेंट ये होता है कि if a given quantity of the gas is held at a constant pressure, its volume is directly proportional to the absolute pressure। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ये हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट था, जिसमें वो कहते हैं कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको सिंप्लीफाई 2 स्टेट के लिए करेंगे, 2 टेम्परेचर के लिए, तो V1 अपॉन V हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये बॉयल्स लॉ और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल थे, उनमें से कुछ न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखे हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे ये हमारे पास सैम्पल गैस है, हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है
एंड वॉल्यूम 2 नहीं दे रखा है, और जो हमें कैलकुलेट करना है दूसरा जो वॉल्यूम 2 है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर इतने पे, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है लेकिन V2 नहीं दे रखा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे इसको V2 सॉल्व इस फॉर्मूले में पुट करके V2 हमने कैलकुलेट कर लिया लीटर में, ठीक है। इसी तरीके से सैम्पल 2 दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें वॉल्यूम दे रखा है और उसके बाद टेम्परेचर 2 दे रखी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वैसे ही सिंपली हमने उसको पहले केल्विन में चेंज किया टेम्परेचर को और उसके बाद हमने ये कर लिया। अब बात करते हैं NTP पे। NTP कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, उस केस में प्रेशर जो होता है 1.01323 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और यू कैन से 1 ATM, ठीक है। P इज इक्वल टू 1.01323 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ 273 केल्विन। फॉर आइडियल गैस के लिए, जो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है 22.4 मीटर क्यूब पर किलो मोल, ठीक है। ये वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं। तो 3 कंडीशन है हमारे पास, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी हम जानते हैं कि इससे निकालेंगे, PV इज इक्वल टू MRT फॉर्मूला होता है। उसी तरह डेंसिटी MP जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स को, उससे तरीके से RT निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे M जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ दी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस टू द रिलेटिव ड्राई एयर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर, जो कि हो गया पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, ईच गैसेस कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर। जो हमारे पास जो कंटेनर में अगर हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, तो उसके जो टोटल प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स गैस के, तो जो कंट्रीब्यूशन है गैसेस का उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब ये पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट से हमारे पास डाल्टन्स लॉ आया था। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस का समेशन होता है। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या हो गया। तो ये एज्यूम करते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक हमारे पास जैसे हो गया एग्जांपल दे रखा था, जैसे 3 गैसेस वी हैव, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और तीन जो है हमारे पास गैसेस दे रखी थी, उनका मोल्स दे रखी हैं, जैसे ना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, PH2 P ऑफ N2 प्लस P ऑफ Br, तो वो PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला रखे, तो ये हमारे पास P टोटल यहाँ से निकल आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ईच गैसेस ऑक्यूपाइड द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो भी यहाँ पे ईच गैसेस होगा वो फॉलो करेगा, ऑक्यूपाई करेगा द entire volume of the container, and the gases will mix homogeneously, and the gas should not react to each other, and the type of gases has no bearing on the partial pressure। ये 4 पॉइंट को आपको पार्शियल प्रेशर और डाल्टन्स लॉ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो भी गैसेस होंगी वो ऑक्यूपाइड करेगी एंटायर कंटेनर को, और साथ में ही जो गैस होगी वो होमोजेनियसली मिक्सड होगी, और साथ में गैस जो होगी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आइडियल गैस लॉ की बात करें तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ 3 लॉ को कंबाइन करके होती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N अपॉन P। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने से हमारे पास R आता है, दैट इज़ गैस कांस्टेंट, और वो जो उसकी वैल्यू होती है जैसे 8.314 तो होती ही है, और ATM में ये एक चीज़ मुझे याद नहीं रहती है हमेशा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया R इज इक्वल टू 0.021 ATM मोल केल्विन, ठीक है। तो P यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारा गैस लॉ आ गया, और ये जो है P इज इक्वल टू P जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ N किलो मोल्स ऑफ गैसेस। तो कंडीशन अगर NTP यानी कि मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM, तो उस केस में एक्सपेरिमेंटली शोज दैट द NTP हैज़ वॉल्यूम
ऑफ, उसमें हमारे पास जो 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 22.41 लीटर, और कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 22.41 मीटर क्यूब। तो ये एनटीपी के कंडीशंस पे हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आती है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था कि जैसे वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, मास हमें दे रखा था HCl गैस का, और टेम्परेचर ये गिवन है और प्रेशर ये गिवन है, ठीक है। तो HCl का सबसे पहले हम क्या मास पता है हमें, ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हम किससे निकालेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया, PV = nRT होता है यहाँ पे, लेकिन हमें m दे रखा है तो n से n निकालना है। तो m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर यहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास इन ग्राम हमें गिवन है 49.8 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द HCl होता है 36.45, तो उसको डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, लाइक नंबर ऑफ मोल्स, और वो सारी वैल्यू पुट कर ली, हमारे पास वॉल्यूम यहाँ आ गया। अगर इसी चीज़ में अगर क्वेश्चन में दे रखा था ये टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दे रखा होता और कहा होता कि 1 atm NTP पे कंडीशन है, तो यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते और एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर लेते, तो उस केस में भी मैंने आपको वॉल्यूम निकाल के दे रखा है, दैट इज 30.67 लीटर, ठीक है। गैस कांस्टेंट मैंने आपको पीछे बताया, गैस कांस्टेंट R = PV अपॉन NT। तो इसका जो वैल्यूज़ हैं ये 3-4 वैल्यू है, आपको याद रहना चाहिए, जैसे R = 0.0820, ये हो गया लीटर ATM मोल केल्विन में, ठीक है, 0.8, और R = 8.314, ये सबको याद रहती है, जूल मोल केल्विन, और R = 62358.9, ये जो होती है mmHg लीटर पर किलो मोल केल्विन में होती है, और R = 1.987 कैलोरी पर किलो मोल केल्विन जो होती है वो कैलोरी वाले टर्म में होती है। ये हमारे पास सारे वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कैन एक्सप्रेस्ड इन दी टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर लिक्विड के लिए हम ये XI रिप्रेजेंट करते हैं, और YI के लिए YI जो होती है वो फॉर गैसेस के रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो YI जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक ith कंपोनेंट अपॉन N टोटल, यानी कि जैसे सपोज हमारे पास Na हो गया तो ये Na + NB + NC, तो ये हमारा क्या हो गया YI हो गया। इसी तरह से XI के लिए कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है दैट इज पार्शियल प्रेशर = P टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। ये इसको कहते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं, ये हमारा राउल्ट्स लॉ यहाँ से डिराइव होके आता है। तो राउल्ट्स लॉ पे भी मेरे एक वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये हो गया। इसी तरीके से छोटे छोटे टर्म हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर उसके बाद दिक्कत होगी। तो एवोगैड्रो नहीं, ये आ गया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सबको पता है, MI/YI को कर लेते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो एक्सप्रेस होती है वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम वेट बेसिस पे ही ले सकते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होता है। फिर आइडियल गैस के लिए कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है कि वॉल्यूम % इज़ इक्वल टू प्रेशर % इज़ इक्वल टू मोल %। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है, नॉट फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए, ठीक है। अब आते हैं ppm पे, जो कि आता है क्वेश्चंस भी आता है। तो ppm बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सॉलिड और लिक्विड कंपोजिशन एंड एक्सप्रेस इन ppm। जो हमारे पास जो लिक्विड में और सॉलिड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज़ डिफाइंड ऑन वेट बेसिस इफ़ द सॉल्यूशन इज़ द वाटर। तो 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है mg/लीटर
इज दैट इज़ ppm, ठीक है, ppm। ओके, तो ये जो एनालिसिस होते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होते हैं। ये इसके एनालिसिस जो होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो जाती हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय कंप्रेसिंग द गैस एट अ टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। जब हम कंप्रेस करके उस टेम्परेचर के बाद ही हमारा जो होगा गैसेस जो लिक्विफाइड में चेंज होगा, या हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट एंड अबव विच द वेपर ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। तो उस केस में अलग अलग गैसेस के लिए मैंने यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर लिख दिया है। इसी तरीके से सिंपली क्रिटिकल प्रेशर होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल प्रेशर दे रखे हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस अंडर द क्रिटिकल कंडीशन, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और ए लिक्विड एट T1 केल्विन अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द रेट T2 केल्विन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है किसी भी सब्सटेंस की तो वाटर के अंदर वो सिंक हो जाता है, और अगर स्मॉलर देन 1 है तो फ्लोट होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्केल अप यूज होती है, 3-4 जो हमारे पास स्केल्स यूज़ होते हैं वो एक है ट्वेडल और स्केल जो कि यूज होती है हैवियर देन लिक्विड, हैवियर देन द वाटर। उस केस में जो ये फॉर्मूला होता है वो हो गया TW इज इक्वल टू SG मुझे भी याद नहीं हुआ ये, TW इज इक्वल टू 200 SG-1, ठीक है। ये लिक्विड हैवियर देन दी वाटर के लिए। अब ब्यूमा की बात करें तो ब्यूमे क्या होता है, वो होता है 140 अपॉन SG माइनस ऑफ 130, ठीक है। इसी तरीके से API की बात करें तो API जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 141.5 अपॉन SG माइनस 131.5, ठीक है। ये इसका SG का हो जाता है। अब ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए होता है। ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुका है, 400 अपॉन SG माइनस 400, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद करना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो pH की बात करें तो pH आप पढ़ते आ रहे हैं कि एसिडिटी डिफाइन करता है, अल्किनिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताता है। अगर pH जो है वैल्यूज़ जो होती है pH की वैल्यू होती है -log-10 H प्लस आयन। तो अगर pH की स्मॉलर देन 7 है तो एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 है तो बेस है, और इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। तो ये H प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाइड्रोजन आयंस को कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ब्यूरे प्लॉट की बात करते हैं तो ब्यूरे प्लॉट पे एक बार क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट को किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द है किसको रिप्रेजेंट करने के, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि है मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड प्योर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ईच लाइन्स ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन। जो इसके अंदर ग्राफ बने होते हैं वो इस तरीके के ग्राफ होते हैं, वो क्या कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और इस टाइप ये ड्यूहरम प्लॉट जो होता है वो यूज होता है किसको, किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इवेपोरेटर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एमेगेंस लॉ के बारे में। तो एमेगेंस लॉ जो है, जिस तरीके से डाल्टन्स लॉ था, जो टोटल प्रेशर था वो पार्शियल प्रेशर के ईच एलिमेंट के पार्शियल प्रेशर का सम था, उसी तरीके से यहाँ पे तो उसी तरीके से एमेगेंस लॉ की बात करें तो ये समेशन ऑफ वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम इज द समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जैसे PV इज इक्वल टू NRT, तो अगर V वॉल्यूम अलग अलग कंपोनेंट और सब्सटेंस का अलग अलग है, उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा VA अपॉन NA इज इक्वल टू VB अपॉन NB इज इक्वल टू V अपॉन N, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन
nRT होता है, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। तो बेसिकली Z क्या हुआ, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसे कि उसमें दे रखा है कंपाउंड दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है कितना 106 kg दे रखा है, ठीक है, या 100 kg दे रखा है। कंपोजिशन हमें दे रखा है वेट बेसिस पे, कार्बन का दे रखा है 85%, H2 दे रखा है 5%, N2 दे रखा है 10%। हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिस सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता रखा है किस तरीके से बेसिस सिलेक्ट करते हैं। तो हम बेसिस यहाँ पे वेट बेसिस, क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम वेट बेसिस पे, इसलिए वेट पे ही हम बेसिस सिलेक्ट करेंगे। तो वो टोटल जो हम लोग का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है वही हम ले लेते हैं बेसिस, दैट इज़ 106 kg। एंड कार्बन अमाउंट, तो उसमें कार्बन अमाउंट कितना होगा 85% ऑफ 106, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास कार्बन अमाउंट आया। अगर हमें केजी में कार्बन का अमाउंट आया है, अगर हम केजी एटम्स निकालना है तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पर हमारे पास 8 किलो एटम्स आया। इसी तरीके से हमने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकाला, 5% है तो 500 इंटू 105, तो हमारे पास ये 5.3 kg आया। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली ये kg आया। अब हम इसको हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। तो kg एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया 5.3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5.3, और इसको हम कंसीडर करते हैं 5। इसी तरीके नाइट्रोजन का, और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा C8H5 और N1, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल था कि हमारे पास ये गैस दे रखे हैं, नंबर ऑफ गैसेस दे रखे हैं, उसका मोल्स दे रखा है 0.025 मोल्स। कैलकुलेट करना है डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mmHg पे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स किस गिवन है, आर की वैल्यू हमें जो है हमें कैलकुलेट करनी है, जो नहीं, तो यहाँ पे हमें mmHg में दे रखे। तो mmHg में आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये होती है टेम्परेचर जो होती है वो हमारे पास 30 + 2 73 कर लेंगे और सारी वैल्यूज़ रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आने के बाद क्योंकि हमें निकालना किसमें डेंसिटी ग्राम पर इन ग्राम पर लीटर में, तो 1 ग्राम पर वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो ग्राम पर लीटर में हमें डेंसिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल क्या हुआ है ये आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन पे। इसमें मैं क्योंकि ये एक चैप्टर मैं पढ़ा रही थी, इसमें मेरा काफ़ी कुछ कवर था, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करके आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल बैलेंस कैन बी डिसाइड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल क्वांटिटी। जो हमारा जो मटेरियल बैलेंस होता है वो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। मटेरियल बैलेंस कई तरह के हो सकते हैं, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस, स्पीसीज मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस कैन बी अप्लाइड फॉर अ सिंगल प्रोसेस एज वेल एज होल यूनिट के लिए भी और होल प्लांट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन सेट्स द कंपोजिशन एंड प्रोसेस सिस्टम फ्लो रेट। जो हम लोग को मटेरियल बैलेंस यूज़ में आता है। मटेरियल बैलेंस जो है इम्पॉर्टेंट टूल है, किस में इम्पॉर्टेंट टूल है ये मैंने लिख रखा है। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, या तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में कहीं देखा था या कहीं देखा था कि ट्रबल शूटिंग स्टडी में यूज होता है। ट्रबल इम्पॉर्टेंट टूल है चेक डिज़ाइन परफॉर्मेंस में। फिर दूसरा है लोकेट सोर्स ऑफ मटेरियल लॉस एंड चेक इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन, ठीक है। अब मटेरियल बैलेंस इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होता है, समेशन ऑफ इनपुट टू द सिस्टम माइनस आउटपुट टू द सिस्टम प्लस जनरेशन इन द सिस्टम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू अक्यूमुलेशन। फॉर स्टडी स्टेट के लिए अक्यूमुलेशन 0 होता है, फॉर नो केमिकल रिएक्शन के लिए अक्यूमुलेशन और जनरेशन दोनों 0 होता है। और उस केस के लिए अगर हम जनरल इक्वेशन हो जाता है समेशन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जनरलाइज केमिकल इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू कंजर्वेशन ऑफ 2 मास एंड मास
कंपोनेंट मोल्स कंपोनेंट मास ऑफ ये चीज़ थ्योरी दे रखी है, वो बता रखा है कि कैसे जनरलाइज केमिकल स्पीसीज इक्वेशन काम करती है। फिर कंपोजिशन ऑफ मेजर कैसे करते हैं हम लोग, मोल मेजरमेंट कैसा होता है, मोल फ्रैक्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लिक्विड के लिए XI से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस के लिए YI से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ पर्टिकुलर गैस अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोलर कंसंट्रेशन डिफाइन करता है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ I टू इट्स मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन, CI इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दी स्पीसीज I अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, ये सारी चीज़ें आप बहुत बेसिक है क्या होती है वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करें तो कंटिन्यूस प्रोसेस इज द वन विच मटेरियल एंटर्स एंड लीव द सिस्टम विदाउट एनी इंटरप्शन। और अगर हम बैच प्रोसेस की बात करें तो बैच प्रोसेस इज द वन विच इज़ क्लोज्ड सिस्टम ट्रीट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल ईच टाइम इन ईच ऑपरेशन। अगर हम सेमी बैच की बात करें तो प्रोसेस विच इज़ ओपन प्रोसेस, मटेरियल एंटर्स द प्रोसेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन बट नन इज रिमूव, ठीक है। ये सारी वैसे ही बात थी। अब हम बात करते हैं स्टैचोमेट्री की। स्टैचोमेट्री प्रोवाइड द क्वालिटेटिव मीन्स ऑफ रिलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड वाइस वर्सा। जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की किस हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आइडिया हमें प्रोवाइड करता है स्टैचोमेट्री, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टेल्स अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। स्टेप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन शुड बी करेक्टली बैलेंस्ड। जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन और वो होगा वो करेक्टली बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, करेक्टली बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रॉपर डिग्री ऑफ कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन शुड बी यूज्ड होना चाहिए और मॉलिकुलर वेट आर यूज टू कन्वर्ट द मास मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी हमारा मॉलिकुलर वेट जो होता है जो यूज करते हैं। अगर हमारे पास मास दे रखा है उसको डिवाइड कर देते हैं मॉलिकुलर वेट से तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। जो कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन शुड बी यूज टू ऑब्टेन द रिलेटिव मोलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू रिड्यूस द कंजप्शन। तो ये इस तरीके से दे रखा है कि किस तरीके से रिएक्शन देख के रिएक्टेंट के लिए स्टैचोमेट्री कौन सी होगी और प्रोडक्ट के लिए स्टैचोमेट्री कौन सी होगी। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं जीटा से, बेस्ड अपॉन द स्पेसिफाइड स्टैचोमेट्री इक्वेशन डिनोट्स हाउ मच रिएक्शन अकर। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम जीटा से और वो हमें डिनोट करता है स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन से हमें पता चलता है और वो हमें करता है कि कितना रिएक्शन जो अकर हो रहा है, हाउ मच रिएक्शन अकर। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, जैसे हमारे पास कैलकुलेट करते हैं जीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स फाइनली प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट था और जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट प्रेजेंट था अपॉन VI। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्पीसीज I प्रेजेंट इन द सिस्टम आफ्टर द रिएक्शन। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो ये 0 कर लीजिए और ये I कर लीजिए, ये I, ठीक है। तो ये शायद 0 और I ही होगा। इनिशियल ये मतलब बाद वाले नंबर ऑफ मोल जो पहले प्रेजेंट थे अपॉन जो हमारे पास स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ स्पीसीज़ है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्पीसीज़ मैंने VI से रिप्रेजेंट किए वो हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव आते हैं तो डिनोट्स कंजम्पशन होता है। अगर जीटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि कंजप्शन टेक प्लेस हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो जनरेशन हो रहा है। अब लिमिटिंग इन एक्सेस रिएक्टेंट की बात करें तो इफ़ द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन देन द स्पीसीज प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन दैट वुड बी एबल टू फर्स्ट टू बी कम्प्लीटली कंज्यूम इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्शन। जो कि लिमिटेड अमाउंट में होता है और जो पहले रिएक्ट होकर पहले ख़त्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और अदर देन द लिमिटिंग रिएक्टेंट are called excess reactant. So the maximum extent of reaction is calculated by assuming complete reaction. जो हम लोग maximum extent अगर हम करते हैं तो assume करते हैं कि complete reaction take place हो रहा है और the reaction with the smallest maximum extent of reaction is the limiting reactant. Okay? अब हम बात करते हैं conversion की।
तो conversion is the function of the limiting reactant in the feed that is converted into the product. Conversion is a fraction of limiting reactant in the feed that is converted to the product. ठीक है, जो वो conversion जो होता है वो limiting reactant का कितना conversion हुआ है into the product वो represent करता है. तो उसको फॉर्मूला हो जाएगा % conversion is equal to moles of the limiting reactant in the feed that react upon moles of limiting reactant introduced in the feed. ठीक है, इंटू 100. और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दैट एक्चुअली अकर अपॉन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दैट वुड अकर इन कंप्लीट रिएक्शन टुक प्लेस. ठीक है, इट मीन्स कि जीटा अपॉन जीटा मैक्स. ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्टिविटी एंड यील्ड की. सिलेक्टिविटी की बात करें तो सिलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट टू द मोल्स ऑफ अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट. ये जो सिलेक्टिविटी होती है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट, एंड इट इज़ हेल्पफुल टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. ओके, अब बात करें यील्ड की, तो यील्ड हो जाता है, डिफाइन करते हैं हम 3 बेसिस पे. पहला हो गया yield based upon the feed. तो based upon the feed पे amount of desired product upon amount of key reactant consume. तो हमारे पास अगर हम फीड पे बेसिस पे कर रहे हैं तो वो होगा अमाउंट ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट ऑफ की रिएक्टेंट कंज्यूम. की रिएक्टेंट किसको कह रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है. ठीक है, डिज़ायर प्रोडक्ट. फिर अगर हम यील्ड बेसिस ऑन % कन्वर्जन पे करें तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और की रिएक्टेंट कंज्यूम. अगर हम बेस्ड करें प्रोडक्ट पे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन अपॉन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्योरेटिकली बेस्ड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट. और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि की रिएक्टेंट हम जनरली लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी साइड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड. तो ये सारी चीज़ें थी मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन. इसमें दूसरी चीज़ हमारे पास बच जाती है, दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे आपको समझाना रह जाता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाना रह जाता है, और प्लस यहाँ पे आ जाता है रिसाइकिल पर्ज एंड बाईपास. ठीक है, बाईपास. ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको अभी और बता देती हूँ. कितने मिनट की, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए नहीं बताऊंगी अभी. रिसाइकिल, पर्ज और बाईपास, ये तीनों चीज़ें मेरे वीडियोस 4 वीडियो मैंने इस पे बेस्ड डाल रखे हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं. मैं लिंक कर दूंगी इसमें वीडियो. तो इस तरीके से मैं रिवाइज़ करती हूँ. मैंने ये सारी चीज़ पर्टिकुलरली नोट्स बना रही हूँ अभी, और मे भी कई लोगों के लिए ये बोरिंग होगा लेकिन ये मेरे को आगे यूज़फुल होगा, इसलिए मैं इस तरीके से स्लो प्रोसेस में काम कर रही हूँ ताकि बाद में मेरे पास नोट्स हों. इस नोट से मैं उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद माइक्रो नोट्स बनाऊंगी और फॉर्मूला नोट्स बनाऊंगी. तो इसलिए मैं इस टाइप से नोट्स बना रही हूँ, जो कई सारे डेफिनेशंस लिखते हुए, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हुए, तो इस टाइप से मैं नोट्स बना रही हूँ. तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, मे बी हेल्पफुल हो आपके लिए. तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा. डेली मैं आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी. तब तक के लिए थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.